Hello, good evening, and welcome to today's new episode. I'm very sorry that I was absent for almost 1 week, could not make even a single video just because of the fact that this is the result season, and this is very hectic schedule season for us, and I was very badly occupied with back management calls, so I could not come with even a single video. Anyways, today's video is going to be very interesting. Today I'm going to show you something which will be very, very productive for all of you. Let's say result season is going on and almost all results have been declared so far. So almost all, maybe a few 1% may be left, but almost all results have come. So if you would like to know how was the performance in Q2 FY25 for most of the counters, this was Q2 FY25, that is the September quarter. If you would like to know how was September quarter for Nifty 50, इससे पहले what I can recall, I have in previous quarter and uh, in previous a few quarters I came out with a few list of stocks from various sectors, how they have performed. Now I will show you guys how you can do it by yourself. क्योंकि कुछ लोगों को मालूम है, मगर ये सवाल मेरे पास आया है. People are requesting me to show me how to do those number crunching, data crunching. So in today's video I'm going to show you how you can check the performance of Nifty 50. इसमें फायदा क्या है कि एक आपके आप अगर निफ्टी 50 का स्टॉक्स ऑलमोस्ट सारा ही पोर्टफोलियो स्टॉक है, so if you are holding any stock of this kind, you can take a decision based on the numbers. Number one. Number two, you may find something very interesting whose prices are on the downside. क्योंकि अभी तो market is on the downside and lots of opportunities are there. अब किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, किसको avoid करना है, वो चीज़ एक that is a very tricky thing at this point in time. आपको जज करना होगा out of those 3,500 4,000 stocks कि किसके साथ जाए, किसको अवॉइड करे. ठीक है, तो एक सिंपल फॉर्मूला आपको बताता हूं कि what you can think, stocks who has posted very good numbers but stock prices are significantly down. थोड़ा वैल्यूएशन देखना है. If valuation is favorable, stock is down, have corrected significantly, and valuation is favorable, and recent past means in the latest quarter they have performed well. So this can be an indication, or let's say this can be an entry opportunity. तो वो ब्लाइंडली नहीं करना है, आपको थोड़ा जज करना पड़ेगा, मगर यस फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग तो करना ही पड़ेगा. तो चलिए आज दिखाता है हाउ टू शॉर्ट लिस्ट और लेट्स से हाउ टू फाइंड आउट द परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी 50. तो इसके लिए लेट मी show you my screen so that you also can follow the process. Okay, so I will show you in Screener how to do it. Right, Screener is very handy for all of us, so Screener can be a very good option in this case. Let me show you. Acha, whenever you will open this window, screener.in, right? This window, this is the home page of Screener. अब देखिए यहाँ पे अच्छा, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे आपको एक वॉच लिस्ट दिखेगा, वॉच लिस्ट व्यू दिखेगा. यू कैन क्लिक हियर इन वॉच लिस्ट व्यू. आई कैन इवन मेक इट विथ जूम ताकि आपको भी क्लियर कट दिखे. अच्छा, वॉच लिस्ट व्यू.
ठीक है, लेट मी क्लिक इन दिस वॉच लिस्ट व्यू। क्या करना है मुझे, निफ्टी 50 का स्टॉक लिस्ट मुझे ढूंढ के निकालना है। अब क्या है कि यू कैन गो हियर, फीड, sorry, you can go to the screens rather. If you go to screen, you can browse sector wise, but I'm not looking for sector wise stocks. I'm looking for nifty 50 जो इस लिस्ट में नहीं है। तो क्या करें, हाउ टू गेट द परफॉर्मेंस ऑल टुगेदर फॉर निफ्टी 50, वो थोड़ा देखना होगा। अच्छा, इन दिस टाइम, इन द मीन वाइल लेट मी शो यू कैसे ये दिखाता है। एक एक मान लीजिए आई हैव क्लिक द एग्रोकेमिकल सेक्टर, तो व्हाट इट इज शोइंग, देयर इज, सी, all these headers are there and you can edit these columns, right? ये जो header है, columns है, you can edit it based on your preferred multiples, preferred valuation metrics, or let's say preferred uh, line items of financial statements, ठीक है? So for that, one annual profit and loss statement is there, quarterly numbers are there, balance sheet is there, cash flows are there, ratios are there, prices are there, and these are the most used ratios. You can choose of your own. I will tell you what I prefer to choose. That before that, अच्छा, ये चूज करके फायदा क्या है, मतलब लेट्स से देर आर, आई वांट टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी 50, तो मुझे क्या क्या मिनिमम चाहिए, दैट इज द सेल्स लेटेस्ट क्वार्टर चाहिए, एबिटा लेटेस्ट क्वार्टर चाहिए, आप एबिटा मार्जिन भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे है एबिटा मार्जिन। अच्छा, नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर, ठीक है। अब क्या है कि आई एम नॉट सेलेक्टिंग मार्जिन बिकॉज आई कैन कंप्यूट इट। एबिटा मार्जिन मुझे अगर निकालना है तो क्या है कि एबिटा डिवाइडेड बाय योर सेल्स, तो हो गया आपका एबिटा मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन, पैट मार्जिन, तो पैट डिवाइडेड बाय योर सेल्स, ठीक है। तो यू विल गेट margins accordingly, ठीक है। तो इन दैट वे यू कैन सिलेक्ट योर क्राइटेरिया, ठीक है। Here is balance sheet. I will show you, I will tell you which line items I prefer for analysis. Now let me go back to the watch list. I was showing you watch list view, ठीक है। Once you, अच्छा, you can do it from here also. If you have a if you have any watch list created, तो ठीक है, इसमें नीचे आपको दिख जाएगा क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट, ये ब्लू कलर का दिख रहा है, राइट। क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे वॉच लिस्ट व्यू पे अगर आप क्लिक क्लिक करोगे, वही सेम कोर वॉच लिस्ट, इसका अंदर भी सेम कोर वॉच लिस्ट ही दिखा रहा है, ठीक है। ये मेरा क्रिएटेड है, आप इसमें अपना वॉच लिस्ट, क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट बोल के आप कर सकते हो। आप इसमें नाम डाल दो, हाँ, यहाँ पे नाम डालना है, मान लीजिए कि XYZ, ठीक है। इसको हम, ठीक है, इसको हम सेव कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या दिखा रहा है, आप मैनुअली एक एक करके कंपनी का नाम डाल सकते हो, आप इंपोर्ट कंपनीज भी कर सकते हो। इंपोर्ट कंपनीज ही करना है, मैनुअल वर्क कौन करता है। तो इसमें निफ्टी 50 का जो स्टॉक्स है, 50 स्टॉक्स है, उसको इसमें डाले। कैसे डाले, अ, हम तो मैनुअली लिखने वाला नहीं है, तो लेट मी फाइंड आउट इफ आई गेट समथिंग, ऑब्वियसली आई विल गेट द लिस्ट। सो निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट एक्सेल, एक्सेल में मुझे डाउनलोड करना है, ठीक है। लेकिन एनएससी का जो है निफ्टी 50, दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक वन, ठीक है। तो इसके साथ जाए, अब देखिए डाउनलोड लिस्ट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स, वो अगर ये सीएसबी में, वो सीएसबी में भी अपलोड लेता है, एक्सेल में भी अपलोड लेता है, ठीक है। इफ यू डाउनलोड इट इन, देखिए ये मेरा डाउनलोडर में डाउनलोड हो गया है, राइट। तो ये मुझ मेरा आ चुका है। व्हाट इज नेसेसरी, लेट मी टेल यू, दिस ISIN कोड इज एसेंशियल फॉर अपलोडिंग द डेटा इन स्क्रीनर। तो यहाँ पे वो हिंट देगा, रुक जाइए, इंपोर्ट कंपनीज कीजिए, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, अपलोड एनी फाइल्स
विच कंटेन्स ISIN कोड्स, तो दिस इज मैंडेटरी। तो इसीलिए निफ्टी का NSE का साइट काफी इंपॉर्टेंट है। और एनी एक्सेल फाइल विथ अ कॉलम फॉर BSE और NSE कोड्स। फाइल क्या लेगा? कैन बी PDF, CSV, XLS और एक्सेल SX, सॉरी एक्सेल SX। तो हम लोगों का CSV भी लेता है, आप चाहे इसको भी कहा गया, दिस इज द लिस्ट, आप इसको भी अपलोड कर सकते। हम क्या किया, हम ISIN को आगे कर दिया था। हम आगे इसलिए किया, पता नहीं वो बाद में एंड में देख के लेगा नहीं लेगा, कंपनी नेम ISIN, तो इतना हम करके उसको अपलोड किया है। नाउ लेट मी शो यू, आप इसको CSV में एज इट इज रख सकते हो। आप इसको, ये देखिए पूछ रहा है कि डू यू वांट टू कीप द फॉर्मेट, दिस CSV फॉर्मेट, ठीक है रख लो। या तो फिर व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेव इट एज एक्सेल SX एज वेल, ठीक है। तो इसमें सेव ऑलरेडी एग्जिस्ट, सॉरी आई वाज ट्राइंग टू शो यू सेव, देन import companies, choose file, right, downloads में, right, इन निफ्टी 50 लिस्ट ओपन, वो अपलोड हो जाएगा। अपलोड हम नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट फर्दर अपलोडिंग इट। नाउ लेट मी शो यू, मेरे कोर वॉच लिस्ट में ये देखिए निफ्टी 50 मेरा अपलोडेड है, राइट। तो ये यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, आप इसको एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है। पूरा अगर आपका रेशियोज वगैरह, आपका जो मेट्रिक्स आपको जज कराना है, यू सेलेक्ट दोज मेट्रिक्स बाय चूजिंग एडिट कॉलम, ठीक है। उसके बाद इट विल बी अपडेटेड, मतलब ऑल द लाइन आइटम्स विथ द नंबर्स विल बी रिफ्लेक्टिंग ओवर देयर, एंड देन एक्सपोर्ट इट, इट विल बी, इट, देखो आप इसका डाउनलोड हो गया। नाउ व्हाट इज टू बी डिस्कस्ड, कि एडिट कॉलम करके हम आपको दिखाना चाहता है कि व्हाट पैरामीटर आई वाज इंटेंडेड टू ऐड। तो यहाँ पे मेरा काफी सारा है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। लेट मी शो यू, लेट मी क्रिएट वन। अच्छा, ये मेरा डिसलेक्शन हो जाएगा तो अच्छा। नाउ लेट मी शो यू, आप क्वार्टरली में जाओ। मेरा मेन मोटिव यहाँ पे क्या है, मेरा मेन मोटिव है यहाँ पे रिसेंट परफॉर्मेंस जज करना, राइट। तो परफॉर्मेंस जज करना मतलब, परफॉर्मेंस जज करने के लिए मुझे 3 नंबर चाहिए। एक है कि लेटेस्ट क्वार्टर, एक है प्रिसीडिंग क्वार्टर मतलब जून क्वार्टर का, लेटेस्ट क्वार्टर मतलब सितंबर क्वार्टर, प्रिसीडिंग क्वार्टर मतलब जून क्वार्टर, और प्रिसीडिंग ईयर क्वार्टर दैट इज लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर। So that is the current one. Let sales latest quarter, that is September 24. Sales preceding quarter is June 24, and sales preceding year quarter is September 23. अब देखो एबिडा हम वही ले लिया, लेटेस्ट एबिडा, एबिडा प्रीसीडिंग क्वार्टर, एबिडा लास्ट क्वार्टर, एंड नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर, नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग क्वार्टर, नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग ईयर क्वार्टर। दीज आर द मेन मोटिव। इसके साथ और क्या होने पे अच्छा है, इसके साथ थोड़ा बहुत समझने के लिए आप इसको, इसका मार्केट कैप ले लीजिए, प्राइस ले लीजिए, लास्ट 3 मंथ 6 मंथ्स का परफॉर्मेंस ले लीजिए। ये देखिए रिटर्न ओवर, नहीं 1 ईयर लेना नहीं है, 3 इयर्स भी लेना नहीं है। ये देखिए 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स, तो मेरा इमीडिएट जो करेक्शन हुआ है, तो उसका एक रिफ्लेक्शन आ जाएगा कि लास्ट 3 मंथ 6 मंथ्स में कौन सा स्टॉक कितना ज्यादा करेक्ट किया है या करेक्ट नहीं किया है। सो दैट पिक्चर विल बी एब्सोल्युटली क्लियर फ्रॉम दिस, दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग दीज 2 लाइन आइटम्स। इसके अलावा थोड़ा वैल्यूएशन वाला रेशियो आप ले लो, जो बेसिक
रिटर्न रेशियोज है, ROE ROC हम लेता है, आई प्रेफर टू टेक इट। ROA भी लेगा, डेट टू इक्विटी लेगा, देन कुछ वैल्यूएशन पैरामीटर्स ले लेगा, जैसे EPS ले लो, पी 100% लेना है, और EV बाई EBITDA लेना है, क्योंकि पी इज नॉट द करेक्ट मेजर एवरीवेयर। तो कहीं कहीं पे हमको EV बाई EBITDA भी करना पड़ेगा, सॉरी। हम्म। तो बाकी बहुत सारा पैरामीटर्स मेरा सिलेक्टेड है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, वो मेरा नेक्स्ट अगले अगले वीडियो में हम दिखाएगा। ओवरऑल हाउ टू जज, पूरा रिजल्ट आ चुका है, पूरा रिजल्ट को एक साथ हम एनालाइज करके दिखाएगा, हाउ टू चेक एवरीथिंग एट ए ग्लांस। सारा मार्केट को एक साथ देखना है, और आई विल शो यू हाउ टू फिल्टर स्टॉक्स, आपको हाउ टू फिल्टर विनिंग स्टॉक्स बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। किसका क्या परफॉर्मेंस है, क्या रिटर्न रेशियोज है, क्या वैल्यूएशन है, उसके बेसिस पे हाउ टू चूज बेस्ट स्टॉक्स, और लेट्स से प्रोबेबल बेस्ड स्टॉक्स फ्रॉम दिस कम्बरसम लिस्ट। तो वो चीज हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे अभी निफ्टी 50 को एक बार दिखाता है आपको। तो ये आप सिलेक्ट कर लिए हो, इतना सारा आइटम सिलेक्ट हो गया, मतलब आप अब इसको सेव कॉलम कर दो, हो गया। So once you will save the column, then all the line items, means all the parameters what you have selected will come as the column name, and accordingly all the lines will be filled up, all the sales will be filled up with the respective numbers for all these stuffs। अब इसको आप एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है, हम एक्सपोर्ट कर चुका है निफ्टी 50 CSV। तो अब देख लो। तो मेरा जो मोटिव है, नाउ लेट मी शो यू, मेरा जो मोटिव है वो कितना फुलफिल हुआ है। देर आर सो मेनी थिंग्स, आई एम दिस डिटेल्ड थिंग, आई विल प्रेफर टू डिस्कस दिस डिटेल्ड थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में लेट मी शो यू ओनली विथ 3-4 पैरामीटर्स, जिससे हम निफ्टी 50 को बहुत जल्दी एनालाइज कर सके। तो हम इसमें इतना लेता है, करेंट प्राइस लेता है, प्राइस टू अर्निंग्स लेता है, मार्केट कैप लेता है, डिविडेंड डील ठीक है ले लेता है, नेट प्रॉफिट लेता है। अ, अच्छा, डिविडेंड डील लेता है, अच्छा यहाँ तक ले लेता है, सॉरी। अच्छा, एक बार डेट टू इक्विटी भी लेता है। अच्छा, मेरा जो मोटिव है, रिटर्न ओवर 3 months, दीज आर टू आइटम्स विच आई एम डेस्परेटली लुकिंग फॉर, ताकि मेरा अभी का परफॉर्मेंस मेरे समझ में आए। आई विल प्रेफर टू टेक इट एट द बिगनिंग, जस्ट आफ्टर नेम ऑफ द स्टॉक्स, स्टॉक एंड इंडस्ट्री जो भी है। तो नाउ इट विल बी क्लियर कि कितना फॉल हुआ है एक एक स्टॉक में, दैट विल बी एब्सोल्युटली क्लियर। खास तौर पे, अच्छा इसको एक एक करके करने से बेटर है आप जस्ट सिलेक्ट दिस वन फॉर्मेट ऑटो फिट कॉलम्स। तो जो छोटा है, मतलब सेल साइज जिसका कंप्रेस्ड है, छोटा है, यू कैनॉट सी द एंटायर राइट अप और एंटायर नेम ऑफ द कॉलम हेडर। तो इन दैट केस लाइक यू कैन यूज दिस वन फॉर्मेट एंड ऑटो फिट कॉलम विथ, ठीक है। नाउ, अच्छा, what else we are looking for? Obviously recent performances।
these three items of EBITDA, I will prefer to take these three line items. नेट प्रॉफिट का भी ये तीन लाइन आइटम, एंड सेल्स का, अच्छा सेल्स का लेटेस्ट दिस वन, ठीक है, सेल्स लेटेस्ट क्वार्टर, दिस इज नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर। चलो, लेट मी select this one, let me put take it here। नेट प्रॉफिट दिस क्वार्टर लेटेस्ट क्वार्टर, नेट प्रॉफिट यहाँ पे डाल देता है, लेट मी ऐड हियर। अच्छा, लेटेस्ट क्वार्टर को लेट मी नेम इट स्पेसिफिकली सितंबर क्वार्टर, ताकि इसमें कंफ्यूजन हो। नेट प्रॉफिट मतलब पैट, सितंबर 24। अब एबिटडा लेना है। अच्छा, और एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स है जिसको लेना है, ईवी बाई एबिटडा, सॉरी, प्राइस टू अर्निंग्स है, ईवी बाई एबिटडा भी लेना है। कहाँ पे लेना है इसको? वैल्यूएशन के पास ही रखना है। ईवी बाई एबिटडा को यहाँ पे डाल दिया, प्राइस टू अर्निंग्स के साथ डाल दिया, मार्केट कैप को आगे ले लेता है। अरेंजमेंट ऐसा होगा तो देखने में आसानी होगी। आई विल कलर इट लेटर, ठीक है। ये ब्लैंक सेल को, ब्लैंक कॉलम को डिलीट कर दिया। अच्छा, सेल्स मुझे मिला है, पैट मिला है लेटेस्ट क्वार्टर का, और क्या देखना है? एबिटडा देखना है, एबिटडा लेटेस्ट क्वार्टर, राइट, सॉरी सॉरी सॉरी, एबिटडा लेटेस्ट क्वार्टर, राइट। पैट एक्चुअली इसके बाद आना चाहिए, ठीक है। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू यू। हाँ, तो इसको भी लेटेस्ट क्वार्टर को हटा के हम सितंबर क्वार्टर करता है, सितंबर 24, ठीक है। This should be written as EBITDA, EBITDA, earnings before interest, tax, depreciation and amortization, ठीक है। तो EBITDA सितंबर क्वार्टर, पैट सितंबर क्वार्टर, और क्या चाहिए मुझे? और चाहिए प्रीसीडिंग क्वार्टर्स का चाहिए परफॉर्मेंस देखने के लिए, प्रीसीडिंग ईयर क्वार्टर का चाहिए एक्चुअली। नेट प्रॉफिट मुझे मिल गया प्रीसीडिंग ईयर क्वार्टर का, प्रीसीडिंग ईयर क्वार्टर, नेट प्रॉफिट, राइट। यानी कि प्रीसीडिंग ईयर क्वार्टर मतलब क्या है? September 23, as we are at September 24, preceding year quarter is nothing but September 23। हम अभी उसको, अभी तक उसको सेव नहीं किया है, दिस इज वेरी एडवेंचरस। ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब एवरी पॉइंट ऑफ टाइम वन मस्ट सेव हिज वर्क, क्योंकि कुछ गलती से बंद हो गया, कुछ हो गया, आपका एग्जॉस्टेड हो गया, बैटरी डाउन हो गया, बस आपका पूरा इंटर वर्क जा सकता है। अच्छा, सेल्स प्रीसीडिंग ईयर क्वार्टर, सेल्स दिया नहीं था यहाँ पे, तो प्रीसीडिंग ईयर क्वार्टर सेल्स आ गया, और एबिटा को भी आना है। देखिए एबिटा कहीं पे है, सिलेक्ट तो हम किया था 100%। देखिए सेल्स सितंबर 24, एबिटा सितंबर 24, पैट सितंबर 24 आ चुका है।
अच्छा, अब क्या है कि सितंबर प्रीसीडिंग ईयर क्वार्टर मतलब सितंबर 23 ठीक है। नेट प्रॉफिट सितंबर 23 आ गया, सिर्फ जो बचा है दैट इज नथिंग बट सॉरी एबिटा। EBITDA latest quarter, EBITDA preceding quarter, EBITDA preceding year quarter. This one. आई होप आपको आपके लिए क्लियर हो रहा है। प्रीसीडिंग ईयर क्वार्टर ये यानी कि September 23। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए? अच्छा, इसका स्पेलिंग एक बार चेंज करता है, बहुत गलत लगता है ये एबिटा अगर ऐसे कोई लिखता है, EBITTA। एबिटा September 23। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे दो ईयर का कंपैरिजन मिल चुका है, इसका परसेंटेज कंप्यूट करना है, और जो करना है दैट इज द मार्जिन कंप्यूटेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एबिटा मार्जिन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एबिटा मार्जिन September 24, करेक्ट। देखिए, एबिटा September 24 डिवाइडेड बाई सेल्स September 24, बस इतना ही है, हो गया। आप इसको परसेंटेज में चेंज कर दो, 19%। ठीक है, तो दिस इज द टेक्निक। उसको डबल क्लिक कर दिया, आपको इतना एक्सेल सबको आता है, इसको बस डबल क्लिक कर दिया। लेट्स गेट लाइक रेस्ट ऑफ द सेल्स गॉट ऑटोमेटिकली पॉपुलेट। अब इसमें क्या है कि पैट मार्जिन 24 का निकलेगा, कैसे निकलेगा अब बताओ। पैट मार्जिन का मतलब होता है पैट डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, आ गया। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, बस डबल क्लिक करना है नीचे, और रेस्ट ऑफ द सेल्स विल बी ऑटोमेटिकली फिल्ड अप। अब ये हो गया कि दिस इज सेल्स एबिटा, एबिटा ना, अच्छा, सेल्स एबिटा, एबिटा मार्जिन, पैट, पैट मार्जिन September 23। इसको कलर कर देता है पूरा चीज को, हल्का सा एक कलर दे देता है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन डिस्टिंग्विश दिस। नेक्स्ट आता है मेरा September 23। इसके बाद है EBITDA 23 का एक बार EBITDA मार्जिन देखना है, इसको एक बार कॉपी करके लेके जाता है वहाँ पे, बस ईयर चेंज कराना है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑल सेम। हो गया। लेट्स कंप्यूट द मार्जिन लेटेस्ट, मतलब EBITDA डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, बस बात खत्म। ठीक है, सो दिस इज EBITDA मार्जिन, एंड सिमिलरली वी विल डू पैट मार्जिन। पैट मार्जिन कब का? September 23 का। दिस इज पैट एंड दिस इज योर सेल्स सॉरी। बस इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, हो गया, बस हो गया, बात खत्म। तो अब मुझे क्या करना है, व्हाट शुड आई डू नाउ, कि आई मस्ट कंपेयर द मार्जिन, एबिटा मार्जिन बिटवीन September 23 एंड September 24। कुछ गलती हो गया, सेल टर्न नहीं, ठीक ही है। इसको थोड़ा अलग कलर देता है, ठीक है। अरे क्या हुआ, सेम कलर हो गया। नेक्स्ट जो करने जा रहा है हम, अच्छा, ये कलर सब सेम हो गया, कंफ्यूजिंग हो गया।
अच्छा, उससे पहले एक चीज करना है मुझे, पूरा चीज को एक बार सिलेक्ट कर लो एंड फॉर्मेट इट टू फिट कॉलम्स ऑटोमेटिकली। हो गया। अब देखो, एबिटा एबिटा मार्जिन, पैट पैट मार्जिन। अब यहाँ से कलर अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो चेक कर दो। ठीक है, ये वाला ऐश कलर रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे कंप्यूट करना है। क्या कंप्यूट करना है? परसेंटेज चेंज ईयर ओवर ईयर। किस चीज का? सेल्स का। सेल्स परसेंटेज चेंज ईयर ओवर ईयर, राइट। इसके लिए लेटेस्ट क्वार्टर, सेल्स ऑफ सितंबर 24 डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ सितंबर 23 माइनस 1। ठीक है, इसको परसेंटेज में कंप्यूट कर। सॉरी, क्या हो गया, कुछ गलत कर दिया। अरे यार, सितंबर लेटेस्ट क्वार्टर सितंबर 24 डिवाइडेड बाय सितंबर 23 माइनस 1, 16%। ठीक है, अब इसको, ये वाला कॉलम मेरा नहीं चाहिए कलर में। ठीक है, सेल्स परसेंटेज चेंज हो गया। नेक्स्ट आता है अच्छा, आपको सेल्स हो गया। अच्छा, हम सेल्स का, अच्छा ये कलर नहीं होना चाहिए, इसको कलर अलग होना चाहिए। अच्छा, ये तो ठीक ही है, सही है। नाउ लेट मी कम बैक दिस साइड। एबिटा का भी परसेंटेज चेंज ईयर ऑन ईयर देखते हैं। एबिटा परसेंटेज चेंज ईयर ओवर ईयर। तो हमको क्या लेना है? लेटेस्ट एबिटा लेना है, मतलब सितंबर 24 का एबिटा लेना है, डिवाइडेड बाय सितंबर 23 एबिटा माइनस 1। ठीक है, नाउ चेंज इट टू परसेंटेज। 46% बहुत ज्यादा है। ठीक है, हो गया। अब मार्जिन डिफरेंस एक बार देखता है, सितंबर 23 और सितंबर 24 का पैट मार्जिन मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है मुझे, इसको एक बार हाईलाइट करता है, रुक जाइए। सेल्स परसेंटेज चेंज, इसको एक बार हाईलाइट करना चाहिए, कर दिया। ठीक है, तो सेल्स परसेंटेज ग्रोथ, एबिटा परसेंटेज ग्रोथ मेरा आ चुका है। अब क्या है कि मुझे एक बार एबिटा मार्जिन का कंपैरिजन करना है। एबिटा मार्जिन ईयर ओवर ईयर, इससे ही समझ में आ जाएगा कि व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, राइट। तो इसके लिए क्या करना है कि एक परसेंटेज से दूसरा परसेंटेज का डिफरेंस निकालने के लिए आप बोल नहीं सकते को, यहाँ पे देख लो एक बार। एबिटा का एक सेकेंड, आपका एबिटा मार्जिन सितंबर 23 में 15% था, जो कि सितंबर 24 में 19% हुआ है। मतलब 15% से 19% कितना? 4%। आप बोलोगे 4%, बेसिकली एक परसेंटेज के साथ दूसरा परसेंटेज का कंपैरिजन वैसे परसेंटेज में नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी इन बेसिस पॉइंट, बिप्स। 100 बेसिस पॉइंट इक्वल टू 1 बिप्स, 1 बेसिस, सॉरी, 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1%, राइट। 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1%। जैसे 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट चेंजेस आता है, 50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट चेंजेस आता है, वहां से ही आता है। 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1%, 50 बेसिस पॉइंट मतलब 0.5%। अब देखिए, एबिटा मार्जिन कंपैरिजन, कंपैरिजन ईयर ओवर ईयर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको? लेटेस्ट वाला एबिटा मार्जिन माइनस
पुराना वाला एबिडा का मार्जिन, इससे ही आपको क्या मिलेगा? 15% है। 15% और वो कितना आया था? 19%। कुछ गलती हो गया। लेटेस्ट वन, दिस इज द लेटेस्ट वन राइट, डिवाइडेड बाय माइनस द प्रीवियस एबिडा मार्जिन 4%। इसको हम लोग परसेंटेज में नहीं बोलेगा, बेटर इसको इंटू 100 कर दो। इंटू 100 कर दो, और एक बार, सॉरी, इसको परसेंटेज को जनरल कर दो। ठीक है, अब इसको और एक बार इंटू 100 कर दो, तो आपका 400 बेसिस पॉइंट का जो डिफरेंस वो दिखेगा। राइट, हो गया। 402 पॉइंट, इसका डेसिमल पॉइंट्स हटाता है। तो एबिटडा मार्जिन कंपैरिजन भी मेरे सामने आ गया है। अब चाहे तो आप पैट का भी कर सकते हो, सिमिलर सिमिलर। हम और टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। तो मुझे क्या मिला? सितंबर क्वार्टर का, सितंबर 24 का सेल्स, एबिडा, पैट, एबिडा मार्जिन, पैट मार्जिन हम कंप्यूट कर लिए। सिमिलरली सितंबर 23 का सेल्स, एबिडा और पैट मुझे मिल गया, और मार्जिन भी हम कंप्यूट कर लिया। अब इसमें कंपैरिजन कर रहा है, राइट? तो दिस इज द कंपैरिजन। अब मुझे क्या देखना है? एक बार परफॉर्मेंस ओवरऑल देख लेते हैं, कौन क्या किया है। एक बार इसके लिए, ये बीच वाला नाम नहीं दिख रहा है, बार बार इधर उधर करने में काफी तकलीफ होती है। तो बेटर है एक बार परफॉर्मेंस देखने के लिए परसेंटेज टर्म में इसको हाइड कर देता है। अब देख लो, अदानी एंटरप्राइज 16% सेल्स ग्रोथ, 46% एबिडा परसेंटेज चेंज। अदानी पोर्ट 6% टॉप लाइन ग्रोथ, 13% एबिडा ग्रोथ। अच्छा, यहाँ पे सारा दिख रहा है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है। अच्छा, एक चीज कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक बार फिल्टर डाल सकते हैं, डेटा फिल्टर, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, देखता है एक बार कि किसका मार्जिन इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा है। टेक महिंद्रा का मेजर मार्जिन इंप्रूवमेंट दिख रहा है, उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बेल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मत लीजिए, क्योंकि दिस इज नॉट द राइट ट्रिक, राइट टेक्निक फॉर बैंकिंग स्टॉक्स। एबिटा मार्जिन का जो कंपैरिजन है, एबिटा मार्जिन का जो पॉइंट है, दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर कंपनीज लाइक बैंकिंग कंपनीज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया must not be measured in this type of EBITDA margin। अच्छा, देन टाटा स्टील भी अच्छा किया है, नेगेटिव था लास्ट ईयर का ग्रोथ, अभी 46% ग्रो किया है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द निफ्टी 50 पैक। 400 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस इन मार्जिन। राइट, तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है आपको। टेक महिंद्रा का सबसे ज्यादा है, उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा स्टील, हिंडाल्को, अदानी इंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, सन फार्मा, पावर ग्रिड, विप्रो, आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी, महिंद्रा महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। वैसे निफ्टी 50 स्टॉक्स का मिल रहा है। यहाँ पे देखो नीचे, जो सबसे कम है यानी कि जो नेगेटिव है वो दिख रहा है। सबसे खराब मुझे दिख रहा है कि एचसीएल किया है खराब, बजाज ऑटो खराब किया है, ओएनजीसी खराब किया है, एशियन पेंट्स तो सबको मालूम है, price has also broken down multi years base। आईटीसी खराब किया है 17%। ये कौन सा लाइन आइटम है? सेल्स ग्रोथ, मगर एबिडा ग्रोथ ओनली 4%, एबिडा मार्जिन स्क्वीज्ड।
ऑलमोस्ट 450 बेसिस पॉइंट। आईटीसी का रिजल्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इन दैट वे यू कैन फाइंड आउट। अब चाहे आप इसको और ज्यादा एडिट कर सकते हो, और ज्यादा कॉलम्स ऐड कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, कंप्यूट कर सकते हो, मगर ग्रॉस हम आपको दिखाया, ये चीजें आप कर सकते हो यहाँ पे, करेक्ट। तो इससे काफी ज्यादा मतलब आसानी से एक बार डेटा क्रंचिंग हो जाता है। तो दिस आर द क्वांटिटेटिव फैक्टर विच हेल्प्स यू टू शॉर्ट लिस्ट योर स्टॉक। तो उसमें परफॉर्मेंस ड्रिवन निफ्टी स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स आपको यहाँ पे आराम से दिख जाएगा। देख लो, आइचर मोटर्स, सिप्ला का परफॉर्मेंस देख लो, भारती एयरटेल। अच्छा, एक बार इसको हम ऐसा कर सकता है कि अच्छा, ये हम एबिटा मार्जिन के हिसाब से किया है, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। आप चाहे इसको कॉपी करके रख सकते हो, टॉप परफॉर्मर्स को। अरे, अब इसको, अच्छा, इसको आप सिलेक्ट करके रख सकते हो, जैसे आई वाज सेइंग यू। तो जो पॉजिटिव है, जिसमें एबिटा मार्जिन ग्रोथ जिसका पॉजिटिव है, उसको आप रख सकते हो। सॉरी, सिलेक्ट कहाँ पे हो गया, ये सिलेक्ट नहीं हुआ है। अच्छा, अच्छा अच्छा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक ही है। क्योंकि ये हिडन फाइल्स है ना, आप इसको हटा सकते हो, चाहे डिलीट कर सकते हो। तो एक बार इसको डिलीट कर देता है बीच वाला, ताकि हम लोग को समझ में आए अच्छी तरह से किसका क्या परफॉर्मेंस है। नहीं, ठीक है, इसको हाइड करके ही रखता है। आप एक बार देख सकते हो ऐसे। अच्छा, और एक चीज मुझे करना है यहाँ पे, लेट मी शो यू। चेंज इन द टॉप लाइन, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। SBI लाइफ इंश्योरेंस 40%, ट्रेंड 39%, बजाज फिनसर्व 30%, बजाज फिनांस 28%, HDFC लाइफ 23%, बजाज ऑटो 22%, लार्सन टुब्रो 21%, कोटक महिंद्रा 20%, ICICI तो छोड़ दो, श्रीराम फिनांस छोड़ दो, ITC 17%, डॉक्टर रेड्डीज लैब 16%, टाइटन 16%। तो इतना आसानी से आप पूरा निफ्टी के सारे स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देख सकते हो। यहाँ पे देखो, नीचे देखो, JSW स्टील का परफॉर्मेंस खराब, 11% डाउन एट द टॉप लाइन, 32% एट द एबिटा मार्जिन, sorry, in at the EBITDA level, and 400 basis point का dip in the margin, EBITDA margin for JSW Steel. So this quarter was not good for JSW Steel. बाकी तो कंपनी सारा ठीक ही किया है, राइट। आप EBITDA मार्जिन से भी कंप्यूट कर सकते हो। तो दीज आर द वेज और बेसिक्स थ्रू विच यू कैन प्ले विद दोज नंबर्स। तो डेटा क्रंचिंग करने के लिए आपका ये वीडियो एकदम अप्रोप्रिएट रहेगा। इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट आई विल बी डूइंग, दैट आई विल बी ग्रॉस taking gross market performance, will judge who has the best performer, or let's say top among the top performer in this period of time। तो काफी important है इस समय आपको जज करना कि कौन सा अच्छा कर रहा है, किसमें प्रोबेबिलिटी कितना ज्यादा है, वो थोड़ा हिस्टोरिकली हम लोग एक बार जज कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई फॉर दैट नंबर क्रंचिंग, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू हाउ टू डू दैट नंबर क्रंचिंग विद वेरियस पैरामीटर्स। इट्स नॉट ओनली अबाउट मार्जिन्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट सेल्स ग्रोथ, इसमें बहुत सारा चीजें हैं। बैलेंस शीट आइटम्स है, डेट टू इक्विटी देखना है, आपका वैल्यूएशन देखना है, प्राइस टू अर्निंग्स देखना है, EV बाई एबिटा देखना है, फ्री कैश फ्लो देखना है। आई विल शो as much as possible in my upcoming video, जिससे आपको पता चले कि हाउ टू शॉर्टलिस्ट स्टॉक्स, हाउ टू फाइंड द विनिंग स्टॉक बाय डूइंग सम डेटा क्रंचिंग। ये छोटा सा एक डेटा क्रंचिंग हम आपको दिखाया। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, यू कैन पॉज और rewind the video and can check and apply the same।
ठीक है। सो दिस वाज निफ्टी 50। एक बार क्विक जज कराना है तो हम लोग यहाँ से जज कर सकते हैं, जो हम लोग कर रहा था। When this result was not good is this quarter, देख लो 22% EBITDA fail and EBITDA margin dip was almost 600 basis point, right? एशियन पेंट्स का रिजल्ट का बात कर रहा था। एशियन पेंट्स का रिजल्ट खराब था। पूरा डिटेल्ड रिजल्ट हम इन एनी ऑफ द नेक्स्ट वीडियोस आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल्स। सेक्टर स्पेसिफिक बात करेगा, मगर इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक ऑल टुगेदर एंड विल शो सम डेटा क्रंचिंग के हाउ टू शॉर्ट लिस्ट आउट ऑफ दोज 4,500 स्टॉक्स। वो चीज हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएगा। तो आई होप दिस वीडियो यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। तो अगले वीडियो में मिलते हैं फॉर डेटा क्रंचिंग। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ you find it really helpful, then like the video, please. Thank you so much for your valuable time, and see you in the next video once again.